बुकलेट यही है ना? यस मैम। ठीक है। हाँ, जो भी कंसेप्चुअल डाउट है आप पूछ लो। मैम आप कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसिटेट एक साथ होंगे तो उनका रिएक्शन बोल सकते हैं क्या होगा? कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसिटेट, तो यू कैन गेट 3 प्रोडक्ट्स ना। देखो ये पार्ट पूरा निकल जाएगा। This will go off as 2 moles of calcium Yes, carbonate. yes. Now this can combine with this to give you what? Formaldehyde. This can Yes, ma'am. combine with this to give you acetaldehyde. This can combine with this to give you what? Acetone, correct? Yes, ma'am. Can combine with this to give you acetaldehyde. तो टोटल 3 आएंगे। ठीक है। Yes, ma'am. और कौन सा है बताओ। मैम मैम मुझे माइकल एडिशन के बाद एक आपने एग्जाम्पल जैसे किया था उसके मैकेनिज्म में डाउट था। मैम मैं आपको फोटो भेजूं? हाँ हाँ भेज दो। मैम मैंने भेजा है। हाँ अच्छा, ये सेकंड पार्ट का बोल रहे हो ना? हाँ First मैम। part you have understood. Ma'am, I'm doubt. Yeah, ma'am, I have doubt only that why the alpha, why the alpha edge on the right is going and why not on the left? You are asking me to compare between these two. Yes, ma'am. Why the right one be removed and not the left one? यहाँ पर जो कार्बेनाइन बनेगा वो 1 डिग्री होगा ना? Yes, ma'am. देखो रेजोनेंस तो यहाँ दोनों जगह होगा, करेक्ट? हाँ हाँ। कार्बेनाइन यहाँ का 1 डिग्री कार्बेनाइन होगा और यहाँ का 2 डिग्री। और वैसे भी जब ये साइक्लिक फॉर्म हो बनेगा, इट विल गिव यू 6 मेंबर्ड रिंग हियर, बट इफ दिस गोज इट विल गिव यू 4 मेंबर्ड रिंग, व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी फेवर्ड। तो अगर 4 मेंबर्ड रिंग बनेगा तो खुल जाएगा वापस, बिकॉज thermodynamically the 6 membered ring will be more favored. Okay, ma'am. Understood. Thank you, ma'am. Yeah. ठीक है। Any other conceptual doubt? मैम आप पॉपऑफ्स रूल एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन सा? मैम पॉपऑफ्स वो है ना, POPOFFS। अच्छा, Popov. Popov rule is for unsymmetrical ketones. If you have an unsymmetrical ketone and you're oxidizing it using strong oxidizing agent like dichromate or KMnO4, then which bond you would break, that is decided by the Popov's rule. According to Popov's rule, during oxidation of an unsymmetrical ketone, the ketonic group is retained with the smaller alkali.
So which is the smaller alkyl group here? CH3. Ketonic group उसके साथ retain होगा, मतलब ये bond break होगा. So here you'll have 2 carbons, here also 2 carbons. So you'll get an acid with 2 carbons each. If you have something like this, now which bond will break? Again this. CH2. If I have one more carbon here, say. Then I'll get a mixture of 2 acids. One is propanoic and the other is butanoic acid. Yes, ma'am. Okay. Anything else? Okay, so can I switch over to the booklet? Fine. I'll go for the booklet now. Is the booklet visible? Yes, ma'am. इसका थोड़ा भी डिस्कशन नहीं हुआ है ना नहीं पहले? नहीं मैम. Okay, let us see the first question. Orthoxylene. What is xylene? ma'am, 2CH3 group on benzene. Is now when you're doing ozonolysis of these systems, remember that you have to take Resonance. resonating forms. Okay, so both these forms you have to take and bring about ozonolysis. तो अगर ये फॉर्म लूंगी और ये फॉर्म लूंगी, this part will give glyoxal. This will give me methyl glyoxal. इसमें ये glyoxal बनेगा, ये glyoxal बनेगा और ये dimethyl glyoxal बनेगा. So answer will be option D. Fine. Second question. Chloroform with air and HNO. This gives you what? Phosgene बनता है ना इसमें. You get phosgene. Phosgene is also known as a war gas. We have done Yes. Yes, this. ma'am. Yes. This phosgene is then treated with benzene in presence of anhydrous AlCl3. तो AlCl3 पहले Cl को निकाल देगा. Plus charge आएगा. That will Yes, go and ma'am. attack the benzene ring. फिर से AlCl3 आएगा. ये Cl को निकालेगा. Then the acylium ion will go and attack another benzene ring. So what will be the final product? Final product will be diphenyl ketone. हम पीछे option अच्छा A रुको. They have given here. one equivalent. So the answer will be here. अगर वन इक्विवेलेंट नहीं दिया होता, मतलब एक्सेस में लिया है, तो ये आता फिर. ठीक है. Can I proceed? एक मिनट मैम लिखते हैं. इसमें x क्या मैम? होगा? हाँ. मैम जो बुकलेट में मिसलेनियस रिएक्शंस दिए है वो सारे इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, मैंने जो नोट्स में दिए हैं बस. ओके मैम. Ma'am, B option. यस, बिकॉज कार्बन पे किसको इंट्रोड्यूस किया है? D minus. हाँ, so it has to be LiAlD4. This will give D minus, and that D minus will attack carbon, correct? Yes. यस मैम. उसके बाद वाटर ऐड करोगे तो ये O माइनस जो बना है वहां पे OH हो जाएगा. So answer will be option B.
Can I clear this off? Yes, ma'am. ठीक है, fourth question. This is oxime formation. Beckman's rearrangement. हाँ, उसके बाद नहीं, रीअरेंजमेंट X के लिए ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है ना. नहीं मैम, मेटल X के लिए Beckman's rearrangement होगा ना. नहीं, पर हम ये ऐड ही करते हैं एसिडिक मीडियम में ना. एक सेकेंड, कुछ तो मिसिंग है यहाँ पर. इन्होंने बेकमैन रीअरेंजमेंट करके आंसर निकाला है, करेक्ट. Yes. बट देन दे शुड हैव गिवन, क्योंकि देखो अमोनिया डेरिवेटिव्स हम ऐड करते हैं एट पीएच 3.5 to 4.5, याद है. Yes. यस मैम. तो उसमें खुद एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, तब जाके ये ऑक्साइन बनेगा. उसके बाद दे शुड हैव एडेड हियर सेकंड स्टेप में अगेन H प्लस, देन दिस विल अंडरगो बेकमैन्स रीअरेंजमेंट. अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन तो दिया नहीं है, एम आई राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो प्रिफर्ड ग्रुप कौन सा होगा? C6H5. हाँ, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उसका ज्यादा है. तो बेकमैन्स रीअरेंजमेंट से ये अमाइड बनेगा, फिर ये अमाइड को जब रिड्यूस करेंगे then this amide will change into amine. नहीं, पर ऐसा भी आंसर नहीं दिया है. इसी को रिड्यूस करता है, बेकमैन्स नहीं करना है शायद यहाँ पर. मैम आपने जो दिया वो है ना आंसर में, ए ऑप्शन में. ए ऑप्शन में कहाँ है? एन पे C6H5 कहाँ है? अच्छा, यस मैम. और ये तो रिड्यूस होगा ना. यस मैम. इसी को रिड्यूस किया है ऑक्साइम को. तो जब ऑक्साइम को रिड्यूस करेंगे तो ये NH2 हो जाएगा और ये H आ जाएगा. इसमें रीअरेंजमेंट नहीं है ना. नहीं, बेकमैन्स नहीं है ऐसे. हम कैसे पता चलेगा बेकमैन्स है कि नहीं? बेकमैन्स में देखो, वैसे उन्होंने दिया भी नहीं था H प्लस, करेक्ट. Yes, ma'am. हाँ, तो बेकमैन्स है ही नहीं. मैम बट NH2OH के बाद दिया था. वो H प्लस तो वी नीड इट बिकॉज अमोनिया डेरिवेटिव जब ऐड करते हैं तो वी नीड द पीएच टू बी एसिडिक. हाँ हाँ. ठीक है. दे वुड हैव अदरवाइज गिवन इन द सेकंड स्टेप, अगेन H प्लस देते, तब जाके आपको बेकमैन जाना करना है. फाइन. ओके मैम. मैम C6H5 है. क्या C6H5? मैम अपने वो C2H का लिखा है. अच्छा अच्छा अच्छा. मैम आप वो फाइनल प्रोडक्ट एक बार बता सकते हो बना के? A. ए है ना फाइनल प्रोडक्ट. ओके. देखो, पहले ये बनेगा, ऑक्साइम बनेगा. ऑक्साइम का जब रिडक्शन होगा NH2 ना. ये NH2 हो जाएगा और ये CH हो जाएगा. तो ओके. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज अ बीटा कीटो एस्टर. यू वांट, एक मिनट दो. हाँ, मैम C. हाँ, कैसे सी बताओ. D any R group can migrate to N.
अच्छा सॉरी मैम, वो मैंने 6 का बता दिया। अच्छा, why C is the answer? Could you tell me? And because the ester group has got reduced, but not the Ketone, yes. Yeah. Ketone is protected, correct? Yes मैम वो Because lithium aluminum hydride can reduce the ketone as well. But ketone I wanted in the final product as it is. So first I protect the ketone using glycol. Protection here is done in acidic medium. मैम प्रोटेक्शन पर सिर्फ एल्डिहाइड का था ना? नहीं, कीटोन का भी होता है ना। ओके तो कीटोन को प्रोटेक्ट कर देते हैं यूजिंग ग्लाइकॉल। उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल रिड्यूस द एस्टर टू अल्कोहल. हाइड्रोलिसिस विल गिव यू बैक द कीटोन. ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी. मैम नोट्स में तो हमने सिर्फ एल्डिहाइड का प्रोटेक्शन लिखा है. अगर आपको ketone भी एल्डिहाइड लिखा है। कीटोन दोनों भी है तो दोनों को प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय एडिंग एक्सेस ऑफ ग्लाइकॉल. अच्छा अगर तो आपको वन इक्विवेलेंट में यही रहेगा. वन इक्विवेलेंट में एल्डिहाइड प्रोटेक्ट, ओके आई थिंक दिया होगा मैंने. यस यस. सिक्स्थ क्वेश्चन. डी ऑप्शन। पहला रिएक्शन इज बेकमैन्स रिएक्शन. सॉरी, बेकमैन्स नहीं है, ऑक्साइम फॉर्मेशन है. यस। और P2O5 तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पर ये भी बेकमैन्स करवाता है. P2O5 वर्क्स एज सल्फ्यूरिक एसिड ओनली. तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में दिस गिव्स यू बेकमैन. सो P2O5 के प्रेजेंस में आल्सो बेकमैन बनेगा. इसमें दे हैव नॉट आस्क्ड अस टू यूज द कॉन्फ़िगरेशन. यस मैम, तो कोई भी जा सकता है ना उस पे। हाँ, सो अगर फिनाइल गया तो आपको ये प्रोडक्ट आएगा. मिक्सचर ऑफ ए एंड बी. हाँ, और मिथाइल गया तो ये आएगा. It will be decided मैम आपका वॉइस ब्रेक हो मैम रहा आपका है. वॉइस ब्रेक हो रहा था. the OH that. Oh, am I audible now? यस। यस मैम. Yes, ma'am. मैम This reaction is stereospecific, na? The group which is anti to OH migrates, na? Yes, ma'am. So the C6H5 migration is preferred. नहीं, अगर मिथाइल है तो वो माइग्रेट होगा एंटी पोजीशन में. अब स्टार्टिंग में ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना. यस मैम, प्लेनर है, तो इसका जो ऑक्साइम बनेगा वो दोनों बनेंगे ना. ये भी बनेगा ऑक्साइम, मतलब ये वाला, और ये वाला भी बनेगा ना. अगर आपको सिर्फ ये दिया होता तो प्रोडक्ट क्या आता? Then you बी. would get B. Am I right? And if they give you only this, then you will get A. But they have not specified which one to take. You are going to get both. Both these oxides are going to be formed when ketone reacts with hydroxylamine. And P2O5 will dehydrate both to give you the what you say, amide. तो मैम ये बेकमैन्स भी आएगा. हाँ, ये बेकमैन्स है ना. X2Y is बेकमैन्स. Seventh question. आपने सेलेनियम डाइऑक्साइड का कुछ बताया था नोट्स में. सेलेनियम डाइऑक्साइड तो वो अल्फा कार्बन को ऑक्सीडाइज करता है ना. Like if I take this compound and if I add SeO2, it oxidizes the alpha carbon to give you यहाँ पर भी कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है, तो ये मिथाइल ग्लाइऑक्सिल बनता है. सो अल्फा कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड. तो अभी यहाँ पर क्या बोला है? which is the product formed when 2-methyl cyclohexanone. हाँ, तो ये अल्फा कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा ना. ओके.
आंसर होगा ऑप्शन बी। मैम ये कौन से इसमें टॉपिक में? ये नहीं दिया था क्या मैंने? नहीं मैम, मैम एल्डिहाइड्स सेलेनियम कीटोन डाइऑक्साइड नहीं। शायद कोई तो चैप्टर में था। मैम नहीं था आई थिंक। इसी में आता है, एल्डिहाइड कीटोन में ही आता है। हाँ मैम उसमें नहीं था। तो फिर लिख लो ये रिएक्शन। मैम आप लिखवा लो। मैम और वो दूसरा वाला अल्फा कार्बन क्यों नहीं? वहां पे सी डबल बॉन्ड हो कैसे बनेगा बताओ? हाँ मैम वो मिथाइल है। कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स ना। यस मैम। मैम तो इट बेसिकली रिप्लेसेस 2 हाइड्रोजन विद अ Yeah, डबल 2 बॉन्ड एंड hydrogen. ऑक्सीजन। Yes, yes. So simply just write down this reaction. मैम कल आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या करोगे? Questions ले लूंगी। ओके मैम। थियोरी तो आपको आता होगा अच्छे से, वो चैप्टर बहुत इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी। I'll take some good questions. मैम डाउट्स रहेंगे तो वो सॉल्व कर दोगे ना? हाँ हाँ, डाउट्स भी ले लूंगी। ये रिएक्शन लिख लिया SeO2 वाला? एक सेकेंड मैम। डन मैम। What about the forms? Forms निकले हैं अभी तक कि नहीं? नहीं मैम। It's too late ना, actually February में फॉर्म्स नहीं आए अभी तक। मैम फर्स्ट अटेम्प्ट अप्रैल में होगा ना अभी? मैम हाँ, बोर्ड के बीच में तो after नहीं your था। boards only ना, now it is not possible. यस मैम। So first attempt will be in April. मैम बट शायद सीबीएसई के भी बोर्ड्स रहेंगे ना तब? सीबीएसई के तो जल्दी हो जाता है ना इनफैक्ट बोर्ड्स। सीबीएसई का तो डेट भी नहीं उनका आया। भी फॉर्म नहीं आया। यस मैम, उनका फर्स्ट टर्म ही हुआ ना। अच्छा। But why I don't know why they have done it so late this time. मैम क्योंकि पहले कोरोना कोरोना करके जनवरी में कुछ नहीं किया, फिर फरवरी में ये स्टेट इलेक्शंस आ गए पंजाब और ये लोग के, फिर मार्च में अभी बोर्ड्स है, फिर अप्रैल में सीबीएसई का है, इसलिए ये लोग का डिले ही हो रहा है। अच्छा। सारे बोर्ड्स के बाद ही होगा ना। पर फिर एडमिशंस कब होंगे? इट विल बी आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आपका अप्रैल एंड या मई में जाता है, मे बी दे कीप ओनली वन अटेम्प्ट दिस ईयर, गॉड नोस। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर एक अटेम्प्ट बहुत कम पड़ता है, एटलीस्ट दो तो रखें। तो अगर फर्स्ट वीक ऑफ मई में अगर सोचते हैं हम, तो सेकंड अटेम्प्ट विल बी एटलीस्ट 1 month लेटर ना। मैम 15 डेज ही लेटर रहेगा शायद से। तो सिर्फ 2 ही रहेंगे। हाँ। तो मई एंडिंग या जून फर्स्ट वीक तक आपका हो जाएगा। उसके बाद रिजल्ट्स आने सीईटी में, कब होगा? हाँ सीईटी कब? सीईटी तो काफी लेट होता है ना एक्चुअली। मैम मैंने जून मई में पढ़ा था होता है कहीं पे। सीईटी। हाँ मैंने जून पढ़ा था कहीं पे आर्टिकल में एक। वो आया था, पर तब तो ये लोग ये भी बोल रहे थे कि जेई एडवांस जून में होगा, पर अभी अप्रैल में जेई मेन हो रहा है, तो जून में जेई एडवांस का कोई चांस नहीं है। नहीं, फिर तो आई थिंक अगस्त में होगा, जुलाई अगस्त जेई एडवांस्ड। हाँ मैम, ये रिजल्ट आने इसका में जैसे रिजल्ट आने में भी तो आई थिंक दे टेक अराउंड एटलीस्ट दे टेक मिनिमम 15-20 days फॉर रिजल्ट। फिर उसके बाद जेई का एडवांस्ड का होगा सारा। जेई एडवांस फिर आपका जाएगा जुलाई में एंड में या अगस्त में। उसके रिजल्ट आते आते सितंबर हो जाएगा। सो एडमिशंस प्रोसेस विल स्टार्ट आई थिंक समवेयर इन सितंबर। मैम, तो मतलब 2021 जैसा ही हो गया पूरा। हाँ सेम। तो आपका फर्स्ट जो ये रहेगा
first year that will be, I think, a short term. I think education में सबसे ज्यादा problems आए हैं. ये I think नीट का भी I think exams फिर postpone होगा आप अगर आपका हो. मैम आई डोंट थिंक नीट जो अंडर ग्रेजुएट का आई डोंट थिंक डेट आया है. पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम पोस्टपोन हुआ ऐसा मतलब नोटिफिकेशन आया था, पर वो फेक है नहीं पता नहीं. अच्छा. No, because there was a huge I think big problem क्योंकि डॉक्टर्स का I think बहुत पहले से they don't have ना that many doctors. Every year I think just few thousands में होते हैं जो डॉक्टर्स ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं. So I think एक बैच बहुत लेट हो गया दिस ईयर, जिसकी वजह से जो सीनियर बैच था ना उनका they had to work I think continuously 24 hours shifts कर रहे थे and it was like 6 months extra हो गया था उनका. तो उनका एग्जाम नहीं, they were not holding their exam because of the junior batch not getting the degrees. So there was a big problem going on उनके. I don't know, ऐसा कुछ हुआ था. अब मैम वो सब अभी इंजीनियर लाखों में बन रहे हैं तो डॉक्टर्स कहाँ से बनेंगे? वो भी है, और डॉक्टर्स की तो जरूरत अभी तो फिलहाल बहुत ज्यादा है. हाँ मैम, वो कोरोना के साथ है. अभी तो कोरोना they have just taken it as a flu only. हाँ, वो ओमिक्रॉन उतना बड़ा चीज नहीं है, वो करोड़ लोग मरते हैं उसमें और उसका चांस बहुत ज्यादा कम है कोरोना के कंपैरिजन में. Yeah. I hope at least by next year things get better. ना तो चाहिए मैम. हाँ ठीक है. एसीटोन टू 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ऑल. ये तो वो है ना पिनाकोल फॉर्मेशन, करेक्ट? Yes, ma'am. पिनाकोल फॉर्मेशन के लिए क्या यूज करते हैं? MG और HG. हाँ, मैग्नीशियम अमालगम. उसके बाद हाइड्रोलिसिस. ये तो क्लेमेंसन्स है, करेक्ट? Yes. नाइन्थ क्वेश्चन. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड फोर्थ होगा. उसमें conjugation है. ये एसिडिक हाइड्रोजन है. हाँ मैम, मतलब हाँ वही. फोर्थ के बाद Second. हाँ, 1D. यहाँ पर प्लस आ इफेक्ट आ जाता है ना. Yes. 4 सेकंड, थर्ड, फर्स्ट होगा ना, मैम फर्स्ट लास्ट क्यों है? क्योंकि उसमें चार्ज डीलोकलाइज नहीं हो रहा है ना. बाकी सब में चार्ज जो है वो डीलोकलाइज होगा ना. अच्छा ओके मैम. हाँ मैम. मैम पर वो विनाइलिक है ना, तो उसका वो हेल्प करता है ना एसिडिक स्ट्रेंथ में. हाँ फिर भी कहना से बाकी सब में रेजोनेंस होगा जो इसमें नहीं होगा. यस मैम. और जब रेजोनेंस हो रहा है चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑक्सीजन आल्सो, जो यहाँ पर नहीं होगा फर्स्ट वाला. यस. ओके. 10th क्वेश्चन. ये कौन सा रिएक्शन है? ये देख के समझ में आ जाना चाहिए. पर्किन रिएक्शन है. They are using an anhydride, aromatic aldehyde with acid anhydride, and sodium salt of that same acid जिसका anhydride है. So this is Perkin. मैम ऐसे रिएक्शंस नाम से याद रहने चाहिए. हाँ, नाम भी पूछते हैं कभी कभी. ओके मैम. तो पर्किन में क्या आएगा प्रोडक्ट? ये है. मैकेनिज्म करूं? यस मैम. This will act as a base. Remove the alpha hydrogen.
This will then go and attack benzaldehyde. मैम वो C2H5 elastomers राइट में. ये OH हो जाएगा. फिर इसका हाइड्रोलिसिस और हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस में एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, सॉरी एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा एंड इट विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड हियर. Yes. और हीट करोगे तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होकर डबल बॉन्ड बनेगा. करेक्ट? Yes. So your answer will be option D. मैम ये लिखना. चाहिए तो लिख लो. हो गया? तो मैम What tests are going on now? सारे AITS हो गए कंप्लीट के चालू है अभी? हो गया. अभी से वो फुल पोर्शन मेंस टेस्ट है. अच्छा अच्छा. मैम हो गया लगता है. हाँ. मैम वो भी AITS ही है ना? क्या? मैम अभी जो चल रहा है ना 2 शिफ्ट्स में. हाँ ऑल इंडिया ही होगा ना. हाँ मैम. अभी सारे टेस्ट जो भी हैं वो AITS ही होंगे. आइडेंटिफाई. मैम पर AITS और मेजर टेस्ट में डिफरेंस क्या है? AITS में मेजर टेस्ट इज ओनली फॉर पे स्टूडेंट्स. AITS even non-pay students can join. That means students from different institutes. जैसे एलन वाले या मतलब कोई भी जो क्लासेस वाले हैं, anybody can join. In fact, those who are appearing for the test, they just have to fill the form and I think they get in. I think so they can attempt. They can appear for these tests. क्योंकि बहुत कम लोग हैं इस बार AITS दे रहे हैं मैम. 1000 बच्चे भी नहीं हो रहे. और वैसे मेजर टेस्ट कितने दे रहे थे पहले स्टार्टिंग में जब? 2020. 2000. ओह. तो आई थिंक अभी जो एकदम सीरियसली पढ़ रहे हैं ना बस वही दे रहे होंगे. बाकी सबने तो आई थिंक दे मस्ट हैव गिवन अप. मैम बोर्ड भी है हाँ और ये यस भी है. मैम बोर्ड्स हैं. हाँ that also could be the reason. Aldehyde, aromatic aldehyde, any aldehyde reacting with a given compound R in presence of zinc. ये reformats की रिएक्शन है. जिंक है ना, reformats की. So अल्फा ब्रोमो एस्टर, अल्फा ब्रोमो एस्टर. तो इन दोनों में से कौन सा है? हम बी ऑप्शन. क्योंकि मिथाइल ग्रुप नहीं है इधर, तो आंसर इज ऑप्शन बी.
reformats की है ये. You want me to do it? समझा है या you want me to do it? मैम कर दो ना. अच्छा. जिंक आके 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा. मैम इसका जो प्रोडक्ट है उधर से बैकवर्ड्स भी जा सकते हैं ना, मतलब वो डबल बॉन्ड को OH बना के. इसमें ये वाला. हाँ मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन करते हैं वैसे ही प्रोडक्ट के लिए बैकवर्ड्स कर सकते हैं ना. हाँ तो पहले इसका फिर हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा ना. यस मैम, OH डाल के. So this will be formed. ये organometallic compound है, similar to Grignard, but not. इसके reactions थोड़े अलग होते हैं Grignard से. This will then attack the aldehyde. इसका हाइड्रोलिसिस और हीट करोगे तब क्या होगा? हाइड्रोलिसिस में एस्टर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा. सॉरी, ये C6H5 है. और हीट करोगे तो ये जो OH और H यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा और सिनेमिक एसिड बनेगा. But why they have given this? क्योंकि हाइड्रोलिसिस तो किया है ना. अच्छा रुको रुको रुको. ये सिर्फ यहाँ पर. वो सिर्फ OH दे हाँ, डिहाइड्रेट. और फिर डिहाइड्रेशन. इसका पीएच ज्यादा मतलब एसिडिक नहीं है, और ज्यादा एसिडिक नहीं है तो फिर एस्टर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा यहाँ पे. बट वो हमको कैसे पता चलेगा? अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट ऑफ. स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस. हाँ तो कहना है इसे HCl तो बनेगा, पर साथ में NH4OH भी बनेगा. हाइड्रोलिसिस जब इसका होगा वाटर के Yes. साथ तो ज्यादा एसिडिक नहीं हो पाएगा मीडियम. ज्यादा एसिडिक क्यों नहीं हो पाएगा मीडियम? क्योंकि अगर HCl है तो साथ में NH4OH भी है ना. Yes, स्ट्रॉन्गली एसिडिक नहीं है ये. और एस्टर हाइड्रोलिसिस स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम. फाइन. अच्छा लिखा आपने, मैंने तो निकाल दिया. यू ऑल हैव इट ना इसका रिफॉर्मेट्स की. यहाँ पर क्या बनेगा 12th वाले में फर्स्ट स्टेप में? ऑक्साइड. हाँ, 2 ऑक्साइम्स बनेंगे. यस सर. एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला. यस. तो ए ऑप्शन. अगर कॉन्फ़िगरेशन वाला क्वेश्चन होता तो कैसे क्वेश्चन बनता? कॉन्फ़िगरेशन में दे विल गिव यू द कॉन्फ़िगरेशन. अभी इसमें तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है ना, यस मैम. तो अमाइन कहीं से भी अटैक कर सकता है ना. तो यू विल गेट बोथ सिन आल्सो एंड एंटी आल्सो. ओके. ये विटिग रिएक्शन है, देखने से मालूम पड़ता है रिएजेंट एक्चुअली. हमें अल्काइल में था ना. ये मैंने आई थिंक कहाँ पर अल्कीन में किया था शायद. नहीं मैम, अल्काइल में अराइल हैलाइड्स में किया था ना. अराइल हैलाइड्स में कहाँ आएगा विटिग? विटिग मैंने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में किया होगा.
ये बना है. Now to this you are adding methyl lithium. Methyl lithium is a strong base. Base के साथ this will behave as an acid. ये अपने H plus दे देगा. और ये आपका ये लाइट बनेगा. You remember me doing ये लाइट? Yes, ma'am. हाँ, ये लाइट now is going to react with your aldehyde here. ये लाइट वैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. फॉस्फोरस के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, am I right? तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स उसमें डीलोकलाइज कर सकता है. So this is the resonating form of the halide. This will then react with your aldehyde. Yes, ma'am. आपने ये अल्कीन्स में किया था और आपने फिटिक किया था ना अल्काइल अराइल में. It was हाँ aryl halides. Yes, ma'am. So this part will come out as PPH3O, PPH3O, and this carbon will join with a double bond. This carbon and this carbon will join with a double bond. So answer will be option B. इसमें वो B10 intermediate से जाएगा. याद है सारे रिएक्शंस नहीं? Can I clear this off? Okay, 14th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया का क्या होता है रिएक्शन? यूरोट्रोपिन. यूरोट्रोपिन बनेगा ना? यस मैम. हाँ. ऑप्शन ए. हाँ, 15th you have NaBH4. NaBH4 will reduce this to alcohol. This is hydroboration. Alkene पे anti-Markovnikov's addition of water. यस. हाँ, so इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए. Sixteenth question. Dilute NaOH दिया है. सेल्फ aldol. And this is an aldehyde and a ketone with aldol. हाँ, intramolecular aldol condensation. यस मैम. वो लेफ्ट से निकलेगा. ये वाला. यस मैम. अगर यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर अटैक करेगा तो कितने मेंबर रिंग आएंगे? नंबर बनेगा 1 2 3 4 5 6. तो ये H प्लस देगा और यहाँ अटैक करेगा. आंसर विल बी ऑप्शन डी. Seventeenth one. KCN H2SO4 will give you HCN. KCN and H2SO4 will first form HCN. HCN का एडिशन होगा यहाँ पर. ये OH हो जाएगा
और उसके बाद यू आर रिड्यूसिंग इट विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. Lithium aluminum hydride will reduce the cyanide to amine. Cyanide will change into amine. So answer will be option B. Can I proceed? CN का CH2NH2 हो जाएगा ना. CN का CH2. Okay, Grignard का reactivity order. Aldehyde will react faster. Yes. हाँ, उसके बाद कौन सा कीटोन? 3 will react faster than 1. Why would 3 react faster? Because Aliphatic. हाँ, aromatic will be definitely Resonance. less reactive क्योंकि कीटोन का SR. प्लस आर इफेक्ट की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक नहीं करता है. सो इट विल बी 2 greater than 3 greater than 1. 2 3 1. The compound formed on heating chloral. Chloral क्या होता है? Trichloroacetaldehyde. This is chloral. This reacts with chlorobenzene. In fact, 2 moles of chlorobenzene are needed for 1 mole of chlorine. यहाँ का H, यहाँ का H और ये O is removed as water. And you get the formation of this. This is DDT. I think DDT also I have not done. No? yes. DDT is dichloro-diphenyl trichloroethane. I'll just tell you how it happens. Chloral लेते हैं. Chloral एसिडिक मीडियम में पहले क्या होगा? ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन होगा. व्हाट चार्ज? प्लस. तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा. कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? Yes. प्लस. सो दिस विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोबेंजीन के कौन सा पोजीशन? हाँ, दिस विल गो एंड अटैक द पैरा पोजीशन. I'll write it somewhere. अब फिर से एसिडिक मीडियम में क्या होगा? यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा. फिर से प्रोटोनेशन होने के बाद क्या होगा? वाटर निकल जाएगा. और वाटर निकलने के बाद कार्बोकटाइन बनेगा. ये कार्बोकटाइन कहां पर अटैक करेगा? अनदर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन. फिर से उसके पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा. सो दिस इज हाउ यू गेट DDT फॉर्मेशन. दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म फॉर द प्रोसेस. यहां से चालू होता है यहां तक. Can I clear it off? अच्छा.
यस मैम डन। ओके मैम वो CCl3 के क्या CCl3 CCl3 के वजह से थोड़ा पॉइजनस है। CCl3 की वजह से क्या? पॉइजनस है। हाँ, हैलोजन डेरिवेटिव्स यूजुअली पॉइजनस होते हैं। ओके। ये कौन सा रिएक्शन है? पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, उसके जैसे है। बी। हाँ, इसका आंसर भी हो। प्रोटोनेशन होगा, वाटर विल लीव आउट, तो यहाँ पे कार्बोकटायन बनेगा, फिर बाजू में से हाइड्राइड शिफ्ट होके यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। मैम वो OH और H ऐसे नहीं हो सकता कि डिहाइड्रेशन हुआ, अल्कीन बना और फिर उसका टॉटोमेरिज्म। यू आर सेइंग OH यहाँ से और H यहाँ से यस मैम। डबल बॉन्ड बनेगा। और फिर उसका हाँ, वैसे भी कर सकते हो, बट एक्चुअली ये वो है ना, क्या बोलते हैं, विसिनल डायोल है ना। विसिनल डायोल्स का ये होता है ना, क्या बोलते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट टाइप होता है ना। ओके। और मैम डिहाइड्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में होगा ना? हाँ, ये डाइल्यूट है ना। हाँ। ओके। इसमें ये बेसिक कंपाउंड है, ये बेस है। कहना ऐसे ये एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो यहाँ से H+ निकलेगा, कार्बेनाइन बनेगा, वो कार्बेनाइन यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, और ये OH हीट करोगे तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। पहले तो ये OH बनेगा, हीट करोगे तो डिहाइड्रेशन होगा, OH। उसके बाद दिस इज क्लेमेंसेंस। क्लेमेंसेंस विल रिड्यूस द कीटोन टू अल्केन। Which of the following compound will give a yellow PPT with? ये iodoform reaction है, haloform. Haloform reaction में you should have a methyl keto group. मैम वो ऊपर वाला कॉपी का। अच्छा, यस मैम डन। हाँ। अब मिथाइल कीटो ग्रुप में होता है ये, या तो these alcohols give haloform reaction which can be oxidized to methyl keto. अब इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा, ये H+ निकलेगा, कार्बेनाइन बनेगा बेसिक मीडियम में, वो कार्बेनाइन आयोडीन को ब्रेक करेगा एज I+ एंड I-, I+ विल गो टू दिस, ऐसे 3 बार होगा। याद है इसका मैकेनिज्म? यस मैम। तो ये ऑलरेडी एक बार हो चुका है, एक बार आयोडीन आ चुका है, अब 2 और आयोडीन आने हैं, तो दिस विल गिव यू द हैलोफॉर्म रिएक्शन। मैम बी में क्यों नहीं होगा? किस में? बी में? हाँ। बी में कैसे होगा बताओ, ये एसिड एनहाइड्राइड है ना। इसमें अगर मैंने NaOH ऐड किया तो इसमें ऑलरेडी लीविंग ग्रुप है ना, ये वाला। ओके समझा? मैम। हाँ हाँ। इसमें कोई लीविंग ग्रुप नहीं है। सी में क्यों नहीं होगा? क्योंकि सी में एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला है, ये वाला नहीं है। हाँ मैम। ठीक है, और डी में भी लीविंग ग्रुप है, एस्टर वाला। यस। ठीक है, ट्वेंटी थर्ड फेवर इसकी
I think I have not done this with you all, no? Have I done Favoris key? I don't think No, so. ma'am. Okay, it's the rearrangement of an alpha halo ketone or aldehyde. I'll just show it to you. मैम इम्पोर्टेंट है क्या ये? ये पोर्शन में है. Portion में JEE advanced के हैं. Okay. You are going to give JEE advanced? No मैम. ओ मैम So you want me to do this? बता दो शॉर्ट. Yes, मैम कर दो. पता चल जाएगा, वो जेई में पूछ ले. ये बनता है उसमें. ये एक ही रिएक्शन है जिसका मैकेनिज्म थोड़ा अनयूजुअल है. ठीक है. बेस है. बेस विल रिमूव द एसिडिक हाइड्रोजन. अब इसका एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए. एम आई राइट? Yes. Yes, ma'am. क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, बट दे हैव रिमूव द H फ्रॉम हियर एंड दिस इज स्टिल नॉट अंडरस्टूड व्हाई. तो H वहां से निकाल के कार्बन आयन यहाँ बनाया है. यहाँ पे लीविंग ग्रुप है. सो व्हाट विल हैपन? दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट हियर. सो दिस कार्बन एंड दिस कार्बन विल जॉइन to form a 3-membered ring. Now that OC2H5 minus will attack the carbon. और जैसे ही कार्बन को अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा. अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस से शिफ्ट होगा और कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा. This is actually a very absurd mechanism. फिर वाटर आके इसको H प्लस दे देगा and you get that 5-membered ring. तो अगर इसका आप करोगे, पहले इधर से H प्लस निकालना. H प्लस निकालने के बाद जो कार्बन आयन है that will attack this carbon to remove the halogen. So you'll get a 3-membered ring here. You'll get C6H5 CH. ये 3-membered ring बनेगा. ये समझा कैसे बना 3-membered ring? बेस ने आके H प्लस यहां से लिया, कार्बन आयन इसको अटैक करके Cl को निकालेगा, तो ऐसा रिंग बनेगा. दिस इज अंडरस्टूड? Yes. उसके बाद OC2H5 माइनस आएगा. OC2H5 माइनस इस कार्बन को अटैक करेगा. अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा. जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा या तो ये. अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन आयन यहाँ बनेगा, और अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर कार्बन आयन बनेगा. तो आपके दो प्रोडक्ट्स आ सकते हैं इसमें. कौन से दो? वैसे दे हैव आस्क्ड ओनली द मेजर प्रोडक्ट. कार्बन आयन यहाँ प्रेफर होगा बनना या यहाँ प्रेफर होगा बनना? Right. राइट में. Right में 1 degree है. लेफ्ट वाले पे बेंजाइलिक होगा ना. Yes. Yes. लेफ्ट वाला प्रेफर होगा ना. समझा कि नहीं?
यस। तो कार्बेनाइन यहाँ बनेगा और ये CO C2H5 इस कार्बन पे चला जाएगा। जो कार्बेनाइन बनाया वाटर के साथ रिएक्ट करके CH2 बन जाएगा यहाँ। So final product will be C6H5 CH2 CH2 COO C2H5. So answer will be option B. मैम C6H5 का प्लस आर इफेक्ट होगा ना उस पे? नहीं, वो कार्बेनाइन डीलोकलाइज हो पाएगा ना यहाँ पर C6H5 में। हाँ। मैम जो पहले वाला पार्ट आपने किया था वो 5 मेंबर रिंग तक, वो कहाँ यूज हो रहा है? वो बस बेस है? इसका ये एक एग्जाम्पल लिया है ना मैंने फेवरिस्टी का। अच्छा। It is given by alpha haloketones. This is also an alpha haloketone, correct? हाँ मैम। वैसे ये सिर्फ JEE एडवांस में आता है, just not there for mains. लिख लिया है ये? मैम एक सेकंड रुको। डन मैम। Okay. This is intramolecular CaNO, concentrated NaOH है, intramolecular CaNO। इसमें OH माइनस पहले कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पर या यहाँ पर? It will attack here ना, क्योंकि यहाँ पर तो बेंजीन से रेजोनेंस आ रहा है इस कीटोन। यस मैम। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होके हाइड्राइड शिफ्ट होगा। आई थिंक सेम एग्जांपल मैंने क्लास में किया है। हाँ, अब ये IMP होगा, ये अपना H+ इधर दे देगा, फिर Na+ इधर आ जाएगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन। जैसा है क्या? ये CaNO ही तो है। हाँ मैम। ये सेम एग्जांपल मैंने किया है क्लास में शायद, CaNO में। Can I proceed with the 25th? यस मैम। What will be the product Z in the following reaction? ये वो है बेंजिलिक एसिड, अल्फा डाई कीटोन है ना ये। यस मैम। अल्फा डाई कीटोन, सेम एग्जांपल मैंने क्लास में किया है। So answer will be option C. You want me to do it? ये इसका कौन से पार्ट में? क्या? ये कौन से टॉपिक के अंदर? CaNO के बाद ही किया होगा मैंने। हाँ। बेस आके H+ ले लेगा, नहीं रुको, H+ ये नहीं, ये तो डाई कीटोन है ना, सॉरी। बेस आके उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा और ये रिंग
ये ब्रेक होके ये कार्बन इधर अटैक करेगा। ये मैंने करवाया, देखा तो सेम एग्जांपल आई हैव डन। हाँ मैम। फिर ये अपना H+ इधर दे देगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये OH हो जाएगा। फिर HCl ऐड करोगे तो वो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन H+ को एक्सेप्ट करेगा, तो ये पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल बनेगा। सेम एग्जांपल है मैंने क्लास में, आई रिमेम्बर आई हैव डन। हम इसमें 6 नंबर तो उठ के 5 क्यों बन गया? क्योंकि और कुछ हो नहीं सकता है ना इसमें। ओके मैम। Home assignment 2 now. Aldol condensation between which of the following compounds followed by dehydration gives you methyl vinyl ketone? Methyl vinyl ketone. इसका आंसर ए ही है, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसीटोन। इसमें से अल्फा हाइड्रोजन दोनों में से किसके पास है? इसके पास ही है ना अल्फा हाइड्रोजन। दिस डजंट हैव, सो दिस कैन नॉट अंडरगो एल्डोल। इसमें से H+ निकलेगा, यहाँ पर कार्बेनाइन बनेगा। फिर वो कार्बेनाइन क्या करेगा? कार्बोनिल को अटैक, इसको अटैक करेगा। So I'll get CH2OH, CH2, C double bond O, CH3। इसको हीट करोगे तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन, OH और H निकलेगा and you'll get methyl vinyl। बी वाला क्यों नहीं रहेगा? क्या बी वाला क्यों नहीं रहेगा? बी वाले में फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड है ना, खुद ही देख लो। डी वाला, डी वाला 2 molecules of acetone will give you, उसका एल्डोल ये बनेगा ना, जो डिहाइड्रेशन होके डबल बॉन्ड यहाँ देगा। ओके मैम, This is not going to give you methyl vinyl ketone. No? ओके मैम। Aldol and Cannizzaro are very important reactions. 99% they are there in the paper. मैम पर उनके इतने डिफिकल्ट नहीं आएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये हम मॉड्यूल JEE एडवांस का कर रहे हैं ना। ओके। ये मॉड्यूल ही JEE एडवांस का। हाँ, but this question you can get in mains also. यस मैम। It's not that tough. मैम मतलब इन जनरल उसके टफ नहीं आएंगे? नहीं नहीं, ये क्लियर कर दूं? यस। सेकेंड वाला फिनाइल हाइड्रोजीन होगा ना। देखो बाकी सब में तो लोन पेयर नाइट्रोजन का रेजोनेंस में है, am I right? इसी नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, सो दिस विल अटैक द कीटोनिक ग्रुप। ये मैंने क्लास में किया ना सारे अमोनिया डेरिवेटिव्स। यस। ये H2। हाँ, एक्चुअली डिहाइड्रेशन होगा, पूरे मैकेनिज्म नहीं कर रही हूं मैं, फाइनल डिहाइड्रेशन होके O और H2 निकलेगा एंड यू विल गेट द phenyl hydrazone. So you'll get the C double bond N here, not anywhere here. Third question का आंसर B होगा ना इसका। हाइड्राइड शिफ्ट होता है ना इसमें, जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, लिखवाया था मैंने। कैनिज़रो में मैंने लिखवाया था, स्लोएस्ट स्टेप इज द शिफ्ट ऑफ द हाइड्राइड आयन।
मैम बताया था शायद से। हाँ बताया ही होगा, क्योंकि फिर मैंने उसको थर्ड ऑर्डर भी बताया था। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बताया था ना वो कैनेजेरो। यस मैम। हाँ तो उसमें मैंने बताया होगा कि स्लोएस्ट स्टेप इज द हाइड्राइड शिफ्ट। हाँ मैम बताया। हाँ। फोर्थ क्वेश्चन, hydrolysis of ester gives an acid and alcohol. B. Compound B is this, and molecular formula of ester is this. हाँ अब can I say this will give you the alcohol, that is ethyl alcohol? Yes. तो अब इसमें कार्बन कितने हो गए टोटल? 2 इधर और 1 इधर। तीन। बचे कितने कार्बन है? 1. So has to be this ester. So it is ethyl acetate. This is the ester which on hydrolysis will give you this carboxylic acid and this alcohol. Fifth question. C होगा प्लस हाँ जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर देगा, सॉरी, तो ये हाइड्राइड सबसे इजीली देगा, H माइनस देना है उसको। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे तो हाइड्राइड जल्दी निकलेगा यहां से। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। गिव मी द आंसर फॉर द सिक्स्थ वन। सी ना? मैम उसका एसिडिक एजेंट। तो एसिडिक एच ये है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। Schiff's reagent is prepared by discharging the pink color of, yes, आयोडोफॉर्म एसिड और उसके डेरिवेटिव्स नहीं देता। क्या? आयोडोफॉर्म टेस्ट एसिड और उसके डेरिवेटिव्स नहीं देता। नहीं, एसिड और उसके डेरिवेटिव्स नहीं देता क्या? क्योंकि लीविंग ग्रुप होते हैं ना उनमें। यस। और कार्बोक्सिलिक एसिड में तो एसिडिक हाइड्रोजन वो OH वाला है। यस। एथ क्वेश्चन, HiO4 क्या करता है? ग्लाइकॉल्स का क्लीव करता है ना, ग्लाइकॉल्स को। वो आप शिफ्ट्स वाला वापस बता सकते हैं। शिफ्ट्स का पैरारोजानिल हाइड्रोक्लोराइड होता है ये रिएजेंट। दिस रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड्स टू गिव यू अ पिंक कलर। Only aldehydes react with Schiff's reagent. Ketones don't. ओके। An organic compound on treatment with HiO4. What does HiO4 do? It breaks the glycol. यस। ठीक है, दोनों जगह OH ऐड करता है, याद है? यस। तो ग्लाइकॉल ये है, ये है, हम ये सी दोनों का तो नहीं होगा रिएक्शन। यू वांट फॉर्मल्डिहाइड, ये भी देगा फॉर्मल्डिहाइड, ये भी देगा, और साइक्लोपेंटेनोन सिर्फ ये देगा, करेक्ट? बी वाला है वो एल्डिहाइड बनाएगा। क्या? बी वाला जो है वो हाँ, एल्डिहाइड। यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा। ये जब ब्रेक होगा तो यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड, करेक्ट? और ये जब ब्रेक होगा कीटोन बनेगा। इसको ऐसे ब्रेक करो, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, तो ये फॉर्मल्डिहाइड देगा और ये कीटोन देगा। यस। Ninth question. Value of equilibrium constant will be highest for. Equilibrium constant highest तब होगा जब product will dominate, correct? यस मैम। प्रोडक्ट मतलब ये डोमिनेट करना चाहिए, ये तब डोमिनेट करेगा जब ये है। क्योंकि अगर इसमें OH आ गया, you know, two OH groups are not stable on the same carbon, correct? यस। But this will be stable because this is having H bonding. Hmm.
ठीक है, 10th हाँ, तो क्वेश्चन। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सबसे स्टेबल था। हाँ हाँ, 10th क्वेश्चन। B. You're having ketone, you're preparing the sodium sulfate bisulfite derivative here, फिर ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस पे रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, तो वापस क्या मिलेगा आपको? Acid. एसीटोन। हाँ, 11th क्वेश्चन। C. सिंपल है। हाँ, H2O. देख के मालूम पड़ता है ना कितने नाइट्रोजन है इसमें, दो. तो 2 नाइट्रोजन होने चाहिए ना। Yes. 12th क्वेश्चन। ट्वेल्थ का कैंडिडेट क्यों नहीं हो सकता? कैनेजेरो में कार्बन कार्बन कहाँ बनेगा? अगर मैंने इसका कैनेजेरो किया तो क्या हो जाता है? एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और दूसरा मॉलिक्यूल क्या बनता है? अल्कोहल। Yes. ये कैनेजेरो में कार्बन कार्बन बॉन्ड तो बना नहीं, मैम तो एल्डोल होता तो वो होता है। अल्डोल में बनता है ना कार्बन कार्बन Yes, बॉन्ड। ma'am. रीमा टाइमन होगा ना इसका आंसर। रीमा टाइमन में क्या करते हैं हम? फिनॉल Aldehyde लेते हैं, बनता है. क्लोरोफॉर्म, अल्कोहलिक KOH, you get the formation of Aldehyde. salicylaldehyde. Can I say a new carbon carbon bond is formed here? Yes, ma'am. So Rima Timon is your answer. Thirteenth question. C. Not correct पूछा है। क्रॉस्ड एल्डोल होगा कि नहीं? देखो इसमें तो एल्डोल हो नहीं सकता, H+ यही देगा क्योंकि इसी में अल्फा हाइड्रोजन है। Yes. फिर वो इसको अटैक करेगा, C wrong. इसका X जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, Acid. और इसको जब हाँ हीट करोगे तो दिस इज सिनेमाल्डिहाइड। इसका आंसर क्या होगा? C. 3 अदर कौन से बनेंगे इसमें? एक तो इसका सेल्फ एल्डोल होगा, Yes. और दूसरा कौन सा होगा? Water. मैम H2O निकलेगा. Dehydration. तो भी 3 कहाँ आ रहा है? मैम सिनेमाल्डिहाइड मतलब सेल्फ एल्डोल और वाटर. अच्छा बिसाइड्स X. Are you able to see the screen? मेरा तो स्क्रीन ही चला गया। फ्रीज हो गया. Oh God. Is the booklet visible now? Yes, मैम. Okay. हाँ, तो 3 कौन से आ रहे हैं? एक तो उसका सेल्फ एल्डोल वाला, वाटर, और तीसरा कौन सा? तो बी भी तो होना चाहिए इसका आंसर। आंसर खाली सी दिया है क्या? Yes, मैम.
और क्या हो सकता है? Three other condensation. But we are getting only two. कॉन्क NaOH में क्या निर्धारण होता है ना? हाँ वो, और उसको कंडेंसेशन नहीं बोलते हैं. यस मैम. Are they talking about NaOH again? I don't know. I think वो NaOH का ही बोल रहे होंगे फिर. NaOH वापस रहेगा ना लास्ट में. वरना मेरे हिसाब से तो आंसर बी और सी दोनों है. ठीक है. 14th क्वेश्चन. मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन किसमें है? ए में. हाँ बी में ना. इसका डीलोकलाइजेशन इस तरफ भी है और इस तरफ भी है. करेक्ट. यस मैम. वो तो इसमें भी है, बट कहना है से यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट है इसका. दैट विल रिड्यूस द एसिडिक. यहाँ पर भी प्लस आर इफेक्ट है. इसका ऑर्डर अगर पूछेंगे तो कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है? वो बी है. बी के बाद कौन सा होगा? डी. ए. नहीं, ए तो लीस्ट होगा क्योंकि बाकी में दोनों तरफ डीलोकलाइज हो रहे हैं. अब सल्फर का प्लस आर ज्यादा होगा या ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन में जब रेजोनेंस होता है तो 2p यूज करता है ऑक्सीजन, और कार्बन इज आल्सो गोइंग टू यूज 2p ऑर्बिटल. सल्फर कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा? 3p. और कार्बन लेने वाला है 2p में. कौन सा फेवरेबल ओवरलैप होगा? 2p ना. तो इसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा है, प्लस आर इफेक्ट ज्यादा है, तो ये वीकर एसिड होगा इससे. जीओसी याद है या भूल गए हो? थोड़ा बहुत याद है. थोड़ा बहुत याद. कॉपर के साथ पहले क्या बनेगा? डिहाइड्रोजनेशन होगा, कीटोन बनेगा. उसके बाद ऑक्साइन बनेगा. उसके बाद बेकमैन्स रीअरेंजमेंट होगा. 7 मेंबर रिंग बनता है, कैप्रोलैक्टम बनता है. कैप्रोलैक्टम का प्रिपरेशन नहीं. 16th क्वेश्चन. साइनोहाइड्रिन मतलब CN माइनस हैज टू अटैक. न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन सबसे इजीली किस पे होगा? कैन आई से इस पे? यस मैम. उसके बाद नेक्स्ट कौन सा होगा? 3. सी. हाँ. 3 के बाद 1. aldehydes react faster than ketone ना. यस मैम. ये aldehyde fastest होगा क्योंकि ये aliphatic है, ये aromatic है दोनों. तो aromatic aldehydes will be less reactive than aliphatic. So 4th is the most reactive. अब इन दोनों aromatic aldehydes में कौन सा ज्यादा reactive होगा? 3. हाँ. Third. Reason being nitro is withdrawing ना. Yes, ma'am.
एक सेकेंड, नाइट्रो वाला जल्दी रिएक्ट करेगा ना, मैम 1। नाइट्रो वाला जल्दी रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू दिस वन, बिकॉज नाइट्रो विड्रॉ कर रहा है तो बेंजीन ज्यादा दे नहीं पाएगा ना यहाँ पर, तो यस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फास्टर हियर। सो 4 के बाद इट शुड बी 1, 1 के बाद 3 एंड देन 2। हम पीछे ए भी नहीं, पीछे का आंसर रॉन्ग है फिर, नाइट्रो वाला जल्दी रिएक्ट करेगा, समझा? यस मैम 17th क्वेश्चन। डी हाँ, हाउ यू गॉट इट? मैम OH आएगा कार्बन पे ऊपर नीचे, पहले Cl आएगा फिर OH आएगा और फिर उसका कीटोन बनेगा। This part will come out as POCl3. यस मैम उसके बाद KOH के साथ ये OH हो जाएगा, यस मैम वाटर निकलेगा और कीटोन बनेगा। कीटोन 18th में शिफ्ट टेस्ट कौन नहीं देगा? बनेगा। कीटोन्स नहीं देते हैं शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट, एल्डिहाइड्स देते हैं। 19th क्वेश्चन। सी तो वो प्रोटेक्शन वाला रिएक्शन है। इसमें कितने क्वेश्चन है और? 25। हाँ, हो जाएंगे अब। 20th, डी ये वो है हाइड्रोजन हाँ, पर एल्कीन सिमेट्रिकल है, करेक्ट? यस मैम किधर भी जाएगा चल हाँ, अब इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये कीटोन हो कीटोन जाएगा, ब्यूटेनॉल। ये क्या देगा, कौन सा रिएक्शन? क्या नहीं जा रहा डी एक एसिड हाँ, OH माइनस कहाँ पर अटैक करेगा, वहां पर? लेफ्ट वाले कार्बन पे नहीं इस पे या इस पे? राइट मैम क्योंकि बेंजीन वो वाले को दे रहा है। और शिफ्ट कौन सा होगा? मिथाइल शिफ्ट, समझा? आंसर विल बी ऑप्शन डी। Aldehyde with KMnO4. Can I say first product will be carboxylic acid? Yes, ma'am. Then SOCl2 के साथ you will get acid halide. Yes. Then you're adding CH3, C double bond O, O minus. तो एसिड हैलाइड पे जब ये रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? एसिड एनहाइड्राइड बनेगा ना? Yes. देखो ये अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, so you'll get acid anhydride. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड एक्सेस में लिया है, ये इधर अटैक करेगा, इसको निकाल देगा तो रिंग खुल जाएगा, पहले यहाँ पर कीटोन बनेगा CH3 के साथ, फिर CH3 वापस इधर अटैक करेगा। एक मैकेनिज्म बताना इसका ना, ये वाले का, हाँ तो ये इधर अटैक करके ये निकल जाएगा ना। अच्छा ओके मैम। फिर CH3 माइनस, फिर से ये कीटोन पे अटैक करेगा, ये भी अल्कोहल बनेगा, ये भी अल्कोहल। समझा है ये?
Yes. वो 3 डिग्री बनेगा ना, राइट वन? हाँ 3 डिग्री। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म कौन देगा? ए विल गिव। ए में एसिडिक हाइड्रोजन तो ये है। अच्छा, which will not give, sorry, which will not give is this, because this is the acidic hydrogen. ये तो ये ग्रुप है CH3CHOH, CH3CHOH, और ये ग्रुप भी है, तो ये तीनों देंगे आयोडोफॉर्म। 25th क्वेश्चन, हाइड्रेशन इसका सबसे ज्यादा होगा, लास्ट वाले का। कीटोन में हाइड्रेशन क्यों होगा? हाइड्रेशन मतलब वाटर का एडिशन, इसमें वाटर जल्दी ऐड होगा, गिविंग यू समथिंग लाइक दिस। इसी का हाइड्रेट स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा इसका हाइड्रेट? क्योंकि इसके हाइड्रेट में क्या है? H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग है। सो डी हो गया इसका आंसर। आई थिंक ये 2 एक्सरसाइजेस हो गए अभी। गेट इक्विप्ड, आई हैव टू टेक इट समवेयर सम अदर टाइम। कल तो कोऑर्डिनेशन है ना? यस मैम। ठीक है, गेट इक्विप कर लो, गेट इक्विप कर लो, उसके बाद जो डाउट्स होंगे वी कैन सॉल्व इट। फाइन, Yes, ma'am. चलो आई एंड नाउ, आई विल सी यू ऑल टुमारो। Yes, फाइन, चलो नाउ बाय ऑल ऑफ यू। ma'am. या बाय। Thank you, ma'am. या बाय।